Ji, Bismillahirrahmanirrahim. I am engineer Mushtaq Khokher. I'm talking for English language course. Lot of time I have conducted English language course in the different levels. I'm a registered tutor of English language course from Fahad Tutorial Center, Islamabad. बच्चों का कोई एक level नहीं होता. Every students have different levels to understand how to speak in English, how to speak in Urdu, and how to write different or common sentences in the routine life. So I'm a basically mechanical engineer. I did my mechanical engineering from UT Lahore. I have been almost 23 years have experience, which I can say almost 15 years served to Pakistan industries, and from the last 7 years I have been serving in education sector. So lot of time I have seen in different fields students hesitate to speak in English, hesitate to write in English. So I started on this topic and planned to conduct English language course before you can say 8 years ago. So from 8 years, I have been teaching a English language course for different student levels. If someone says I need a basic level, so I started from the basic level. If someone say कि जी, I can speak a little bit, but I hesitate to speak in English, so I said okay, I can start from that level. So if someone asks, I need a advanced level English language course without any hesitation. I wish I can speak to in a very fluently English in different level of English aspects and different level of you can say without any hesitation I can speak very well. So I said to those students, okay, we will go to a practice session and you will increase so much so and you will grow so much so. So from the demo point of view, I just conducted this class to those students who just want to see my video tutorial to check my level of the English. So I just want to say to those students who want to say that sir, I want to learn about the basic language of English. So if I start the basic English language course, I will talk to that particular person in Urdu because he does not understand or she does not understand what I am saying. तो उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश को हवा समझते हैं, हेजिटेट करते हैं, विद इन 5 to 6 minutes मैं उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. देखिए बेटा, प्रोफेशनल एजुकेशन एवरीबॉडी कैन गेट वेरी इजीली. रटा लगाया, समझा, एंड आफ्टर 2 years degree, after 4 year degree, the particular university will give you a particular degree. कोई भी प्रोग्राम है, you are going to appear in MBA classes, you are doing BBA classes, you are taking MBBS classes, but you want to speak in English, you should aware about the basic level of English course. So I would suggest whatever you have the level, I will guide from that point. So for this demo, I am just going to start a very much level of low level of English, who cannot speak, who cannot write to in English. So I just wanted to say something about that kind of students. The second thing, mostly professional engineers, professional people contact me and to please guide us
how to speak in English in front of different people, and you are standing on the platform and you have to speak in English. So it's very difficult for me, I can't speak. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें प्रोफेशनल लोग जब जॉब के लिए जाते हैं, so they have to write in different emails to the different departments. So they have to write in English. So and they think how we will write, and they think how we will write in the right sentence, and we will send this kind of email to the other person. तो बच्चे फिर फील करते हैं। इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स जो different fields से तल्लुक रखते हैं, when they appear to write down the email to the other person, they face different difficulties. How to start, how to write these emails. अगला बंदा माइंड ना कर जाए, यार मेरी इंग्लिश अच्छी है नहीं अच्छी है, तो डिफरेंट बच्चे फील करते हैं। मैं उनको जस्ट आई वुड सजेस्ट टू दो स्टूडेंट्स हु वांट टू राइट समथिंग in English, or who want to speak in English, they just follow my different steps, links. Inshallah, after my this language course, they will be able to speak in English. They will be able to write in English by email, whatever the criteria they will follow. So I will just explain a little bit कि आपने स्टार्ट कैसे करना है। देखिए, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, बिकॉज आई हैव जस्ट इन द स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ दिस वीडियो ट्यूटोरियल, मेरे पास जब मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो एट द एज ऑफ बिगनिंग जब मैंने ग्रेजुएशन की, आई आल्सो फेल्ट हाउ आई विल स्टार्ट टू राइट इन इंग्लिश। तो जो मेरा निचोड़ है, आप ये कह लें, जो मेरा कंक्लूजन है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कंक्लूजन को कहते हैं निचोड़, कि आपको कोई काम करना आना चाहिए या कोई काम आप कर सकते हैं। ये दो सेंटेंस जो मैंने आपको बताए हैं ना, मोस्टली वी हैव टू राइट इन डिफरेंट ईमेल्स। ईमेल्स में क्या पूछा जाता है, आपने ये काम किया नहीं किया, आप ये काम कब तक करेंगे, ये इतनी देर तक करेंगे। तो 3 to 4 डिफरेंट सेंटेंसेस हैं, एंड इसकी प्रैक्टिस मैं करवाता हूँ, बट डेमो पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जस्ट आई विल एक्सप्लेन नॉट इन डिटेल, बट यू विल सी हाउ यू विल राइट। अब मैं एक काम कर सकता हूँ, ठीक है जी। तो हाउ आई विल टेल टू द अदर पर्सन कि मैं ये काम कर सकता हूँ। मैं कहूँगा जी, आई कैन ईट। सिंपल। बच्चे को स्टार्टिंग पोजीशन पे ये सुनाया जाता है, आई कैन ईट, आई कैन डू दिस वर्क, राइट, और आई कैन राइट एज वेल। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ। बॉस आपसे कब जब भी मुखातिब होगा, तो वो आपसे कहेगा यस, आप अगर आप काम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यू सेड कि जी मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो कहेगा ठीक है, यू शुड डू। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले बच्चों कैन का लफ्ज इस्तेमाल करना बताया। कैन का मतलब कि आप वो काम करने के काबिल हैं। आई कैन ईट मतलब आई कैन ईट माई सेल्फ, मैं खुद कुछ खा सकता हूँ। आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ। आई कैन राइट एज वेल, मैं बिल्कुल बेसिक बच्चों को बता रहा हूँ जो कोई नहीं लिख सकता, कुछ नहीं बोल सकता, एंड दे फील ऑलवेज हेजिटेट टू स्पीक इन इंग्लिश। तो कैन, और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट लफ्ज है शुड का। अगर आप ये दो चीजें याद रख लें बच्चों, आई शुड रेस्पेक्ट टू द एल्डर्स, मतलब मुझे बड़ों का अदब करना चाहिए। ये मोस्टली मेरे एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कैन और शुड most of the time in our routine life we have to use these kinds of words। मैंने क्या कहा है कि ये ऐसे दो लफ्ज हैं कैन और शुड, ये हम हर फिक्रे में हमें ये कहना पड़ता है। ठीक है बच्चों, आज ये काम कर सकते हैं आप जी, मैं कर आई कैन डू दिस। ठीक है, अच्छा कल आपने ये काम करना है, तो आपको ये काम करना चाहिए।
ठीक है जी, यू शुड रीच ऑफिस बिफोर टाइम, यू शुड प्रे 5 टाइम नमाज इन अ डे, आपको ये नमाज अदा करनी चाहिए। कैन और शुड मोस्टली हम रूटीन की लाइफ में इसको पढ़ते हैं। तो कैन का मतलब वो कि वट एवर यू डू आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू विल से टू द अदर पर्सन, आप अगले पर्सन को कहेंगे कि जी मैं ये काम, मुझे ये काम करना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, हमें बड़ों की अदब करना चाहिए। कर सकता हूँ और शुड का यूज या करना चाहिए हमारी, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इस रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये मोस्टली लफ्ज बोलते हैं। और अगर आप इसको फॉलो कर लें ये दो लफ्ज को, कैन को और शुड को, तो मेरा ख्याल 25% इंग्लिश यू कैन स्पीक। यू कैन स्पीक का मतलब मैंने अभी आपको कैन का लफ्ज होता है, बोल सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार। मुझे गाड़ी चलानी चाहिए, आई शुड ड्राइव द कार। वेरी इजी, और कुछ भी नहीं है। तो अगर दूसरे एस्पेक्ट से मैं देखूं और आपसे बात करूं कि एक और टर्म हमारे यहाँ यूज होती है मोस्टली जब बेसिक इंग्लिश सिखाई जाती है, उसमें हम कहते हैं कि जी या तो आपको प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर का पता होना चाहिए, राइट। अब प्रेजेंट वो चीज है जो इस वक्त मौजूदा है, पास्ट जो गुजर चुका है, और फ्यूचर वो है जो अभी 2 सेकंड के बाद आएगा, या 3 सेकंड बाद आएगा, या कल आएगा, परसों आएगा। यानी जो हमारी जिंदगी बाकी है, वो आने वाली है, वो सब फ्यूचर है। जो हमारा टाइम गुजर गया है वो हमारा सारा पास्ट है। अब इन द सेंटर सिर्फ प्रेजेंट बचता है। बच्चों प्रेजेंट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मेरी एक अपना एक्सपीरियंस है कि प्रेजेंट सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है। देर इज ए नो एनी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रेजेंट, क्योंकि वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है। देखिए 2 सेकंड पहले मैंने आपसे कहा, वो मेरा पास्ट था। मैंने क्या कहा? वो मेरा पास्ट था, कि शुरू में मैंने आपको इस लेक्चर में ये बताया। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं? मैंने बताया। अभी 2 सेकंड पहले मैंने ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इस व्हाइट बोर्ड पर लिखा, ये पास्ट हो गया। जूं जूं 1 सेकंड का टाइम गुजरता जा रहा है, दैट इज ओवर पास्ट। अब जो 1 सेकंड के बाद टाइम आएगा, कि कुछ ही देर बाद मैं ये कहूंगा, वो मेरा फ्यूचर है। तो पास्ट टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए देखें जी, कायदे आजम ने ये काम किया, अल्लामा इकबाल ने हमें ये ख्वाब देखा कि जी पाकिस्तान बनेगा, ठीक है जी, उन्होंने ये काम किया, कायदे आजम ने ये एजुकेशन हासिल की, कायदे आजम ने फलां मुल्क से एजुकेशन हासिल की। ये सब पास्ट की, सब पास्ट की चीजें हैं। पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ये थोड़ा सा गाइडलाइन देनी पड़ती है। और फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए आई विल डू, सिंपल मैं उसको सेंटेंस को यूज करूंगा, आई विल डू। और पास्ट में मैं उसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा, आई डिड, सिंपल, कि मैंने ये काम किया। डू की सेकंड फॉर्म डिड मैंने यूज किया। दिस विल बी यूज फॉर पास्ट, कि मैंने ये काम किया। कब किया? सेकंड पहले किया, 2 सेकंड पहले किया, 10 साल पहले किया, 1 सदी पहले की, सेंचुरी पहले किया। तो आई ऑलवेज राइट इन द आई डिड, कि मैंने ये काम किया। पास्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, चाहे वो आपने 1 सेकंड पहले किया है, चाहे आपने साल पहले किया है, महीना पहले किया है, 10 साल पहले किया है, 1 सेंचुरी पहले किया, अल्लाह मियां आपको उम्र दराज करे, जो लोग 1 सेंचुरी पहले भी जो काम किया है, तो वो यही कहेगा कि मैंने उस वक्त ये काम किया, आई डिड, सिंपल। और मैं आज के बाद ये काम करूंगा, 100 साल बाद करूंगा, 200 साल बाद करूंगा, 2 सेकंड बाद करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा। तो सिंपल हम लिखेंगे आई विल डू दिस वन, ये हम राइट करें। तो पास्ट टेंस के लिए सेकंड फॉर्म, और बाकी फ्यूचर के लिए आप विल का लफ्ज यूज करेंगे। तो इन दोनों के दरमियान में देर इज ए नो वे ऑफ द प्रेजेंट। प्रेजेंट सिर्फ 1 सेकंड के लिए आता है और वो चला जाता है।
वो जो चला जाता है वो पास्ट बन जाता है, हर एक सेकंड के बाद आने वाला जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट बनता है, और साथ ही पास्ट में रहता है, या वो पास्ट में रहता है और मेरी सारी जिंदगी जो फ्यूचर में पड़ी है, जो बाकी जितने मेरी सांसें बाकी हैं वो सारा फ्यूचर है। और मैं अगर ये कहता हूँ कि 2 साल बाद मैं ये करूंगा, साल बाद ये करूंगा, मैं इंशाल्लाह कल आपको भेज दूंगा, ठीक है जी, मैं कल आपको ये लेटर दे दूंगा, मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद ये काम कर लूंगा, मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद गाड़ी सीख लूंगा, सारों के लिए विल का लफ्ज यूज करें। अगर आप ये विल और फास्ट को एक्सप्लेन करना सीख लें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैन और शुड का बड़ा फ्लुएंटली आप ये टर्मिनोलॉजी सीख लें कैन शुड की, और फ्यूचर और पास्ट को एक्सप्लेन करने की, मोस्टली आप 50% इंग्लिश सीख लेंगे। मैं इन 4 चीजों की बहुत हद तक प्रैक्टिस करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जिससे वो ऑलमोस्ट 2 वीक के बाद they will be able to speak in English. They will be able to write in English. तो इंग्लिश कोई ऐसी चीज नहीं है, उसको अगर प्यार से और मोहब्बत के साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश की जाए तो समझ आ जाती है। अब इसमें कैन को नेगेटिव कैसे बनाना है, पास्ट कैसे बनाना है, नेगेटिव कैन को फ्यूचर में कैसे एक्सप्लेन करना है, फिर शुड की नेगेटिव कैसे बनाना है, शुड को सवालिया कैसे बनाना है, शुड को सिंपल सेंटेंस में कैसे लिखना है, ठीक है, वो एक प्रैक्टिस है। और इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं, मुख्तलिफ मौकों पर क्या बोलना है, मुख्तलिफ मौकों पर कैसे एक्सप्लेन किया जाना है, वो फिर इंशाल्लाह आप मेरे से डिटेल जब क्लासेस लेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फहद ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म से मैं एक रजिस्टर्ड टीचर होने के नाते जब मुख्तलिफ स्टूडेंट से रब्ता करूँगा, या मुझे एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिलने के बाद फहद ट्यूटोरियल इस्लामाबाद की तरफ से, तो बच्चे बहुत ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। इस वक्त भी मुझे ये प्रेशराइज करके फोर्स करके कहा गया कि आप डेमो रिकॉर्ड करवा के हम पर भेजें, बार बार डेमो नहीं हम आपका ले सकते। तो मैं ऑलरेडी काफी हद तक इस प्लेटफॉर्म में डेमो दे चुका था। तो ऑन देयर रिक्वेस्ट के जी प्लीज मेक अ न्यू वीडियो ट्यूटोरियल एज ए डेमो कंसीडर करें और बच्चों के लिए सेंड करें। तो आई होप बच्चों यू रियली एंजॉयड माय दिस काइंड ऑफ डेमो, and inshallah if will you will join me, I will guide you how to speak in English, how to write in Urdu or whatever, how to write in English in the simple paper, and how to start your email to the other person. तो ये सारी बातें उसमें होंगी, कोई ऐसी हवा नहीं है, इंशाल्लाह यू विल एंजॉय इट। थैंक यू वेरी मच। मैं फिर एक दफ़ा फहद ट्यूटोरियल वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो जिन्होंने मुझे इज्जत बख्शी और जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने की अ, हिम्मत अता की और मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका एक रजिस्टर्ड ट्यूटोरियल बन जाऊँ। तो थैंक यू वेरी मच, तो नाइस यू। अस्सलाम वालेकुम।